Jai Hind students. Today we will discuss the remaining topics of the chapter number 2 of geography, land, soil and water resources. Now today we have to start our topic from soil profile. Soil profile is a vertical section of soil from the surface to parent rock, that is known as soil profile, and it is having some horizontal layers. That horizontal layers are also known as soil horizons. So these soil horizons are marked as ABCD. There are four types of soil. There are four layers in soil profile. So these four layers are marked as A, B, C and D. From the uppermost layer to the parent rock. Uppermost layer से लेके parent rock तक four layers होती हैं. So they have marked ABCD. Now first one is A, horizon O. A, that is top soil. सबसे first uppermost part. It is the uppermost layer. इसमें बहुत सारे सोलेबल मिनरल्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं. सबसे ज़्यादा ह्यूमस जो होता है वो टॉप मोस्ट लेयर में ही होता है, विच इज़ वेरी नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, एंड लीचिंग इज ऑल्सो द वेरी कॉमन इन दिस लेयर. नेक्स्ट इज सब सॉइल. ये आपके टॉप सॉइल के नीचे की लेयर है जिसमें मेनली सैंड, सिल्ट और क्ले होता है. इसको हम सब सॉइल भी कहते हैं. दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज सब सॉइल. And this layer has more mineral content than horizon A. Horizon A से ज़्यादा इस लेयर में minerals होते हैं. You can see the image also of this soil profile. सब सॉइल में मिनरल कंटेंट तो ज़्यादा होते हैं, बट ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ह्यूमस की जो क्वांटिटी होती है वो लिमिटेड होती है. हॉरिजन ए एंड बी दे टुगेदर मेक द ट्रू सॉइल. नेक्स्ट इज सी, दैट इज नोन एज रॉक फ्रेगमेंट्स. In this layer, mostly small pieces of rocks are included. True soil develop from these rock material. जो true soil है वो आपकी इसी rocks material से develop होती है, and these rocks are not affected by biological process. The last layer of this soil profile is D, that is parent rock. It is having unbroken solid rock, which is a material lying below horizon C. So there are four layers in soil profile A, B, C, D. First layer is topsoil, second subsoil, third is rock fragments and fourth is parent rock. So topsoil contain a good quantity of humus. Second one is having sand, silt and clay, having good mineral content but less humus. Third is having rock fragment, which is having some small pieces of rocks. And the last one is parent rock, which is having unbroken solid rock. These are the four layers of soil profile. Now next is soil resources of India. अगर हम बात करें एशियन इंडिया की, तो soils were classified on the basis of their fertilities and sterile, that is Urvara and Usara. India, with its varied rocks, relief, climate and vegetation, has a great variety of soils. The following types of soil are found in India. If we talk about the soil resources, there are different types of soil found in India. So today we'll discuss about the different types of soil. The first one is alluvial soil. Alluvial soil सबसे ज़्यादा fertile soil है और सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड. सबसे मोस्टली जो होती है वो हमारी alluvial soil होती है. ये मेनली कहाँ पर होती है? आपकी plains of North India और flood plains में, deltas में. So this soil is formed due to the deposition of sediments by the river. How the soil is formed? It is formed ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर. जो सेडिमेंट्स रिवर्स के पास जो सेडिमेंट इकट्ठा होता है उससे ये सॉइल फॉर्म्ड होती है. एलिवियल सॉइल सब बहुत फर्टाइल सॉइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए सबसे फिट होती है. दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर. नेक्स्ट आपकी है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल आपकी कैसे फॉर्म होती है? ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, इसलिए इसको हम ब्लैक लावा सॉइल भी कहते हैं. इसमें मेनली क्ले पार्टिकल होता है which can easily hold the moisture. This type of soil is found in the Deccan Trap region and is locally called rigger soil. इसको हम black soil को rigger soil के नाम से भी जानते हैं. Black lava soil is good for the cultivation of cotton and sugarcane. For the cotton cultivation, black soil is the best soil for this. Next is red soil. रेड सॉइल जो है आपकी ओल्ड इग्नियस रॉक जो होते हैं दे फॉर्म रेड सॉइल. रेड सॉइल आपकी मेनली पेनिनसुलर इंडिया में फाउंड होती है. रेड सॉइल जो होती है वो कलर में रेड क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ हैविंग
आयरन कंटेंट, हाई आयरन कंटेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, दैट्स वाई इट इज़ रेड इन कलर। इस सॉइल को हम फर्टाइल बना सकते हैं बाय एडिंग मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। नाउ नेक्स्ट इज लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन हैवी रेन वॉश अवे द फर्टाइल अपर पार्ट ऑफ द सॉइल। जब बहुत तेज़ बारिश होती है और जो फर्टाइल पार्ट होता है सॉइल का वो जब रिमूव हो जाता है, दैट दिस सॉइल इज़ फॉर्म्ड। देयरफॉर दिस सॉइल इज़ लेस फर्टाइल बिकॉज टॉप लेयर तो हट जाती है सॉइल की, इसलिए ये जो सॉइल होती है लेटेराइट सॉइल ये कम फर्टाइल होती है। ये मेनली कहाँ पर फाउंड होती है? वेस्टर्न घाट्स में एंड इन द फ्लैट अपलैंड्स वेयर हैवी रेनफॉल अकर, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सच सॉइल कैन ओनली सपोर्ट पेस्चर एंड शर्ब्स। इस सॉइल में मेनली क्या ग्रो होता है? पेस्चर्स एंड शर्ब्स। सो शर्ब्स एंड पेस्चर्स यहाँ पे ग्रो देंगे, सी द इमेज ऑफ लेटराइट सॉइल। नाउ नेक्स्ट इज माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल मेनली कहाँ पे होती है? माउंटेन्स पे, हिल स्लोप्स पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया होता है, पूरी फॉरेस्ट से ही कवर्ड होती है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड दैट्स वाई इट इज़ रिच इन ह्यूमस ऑल्सो। Mainly it is very good for the cultivation of tea, coffee and spice cultivation. Next is desert soil. Desert soil, it is found in the hot areas or in semi-arid regions, जहाँ पे बारिश बहुत कम हो, थोड़े सूखे से एरियाज हैं, वहाँ desert soil found होती है। ये thick layer of sand होती है, इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम होता है एंड इसमें जो soluble salts का जो proportion होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इरिगेशन की हेल्प से, अगर हम ज़्यादा उसमें इरिगेशन की हेल्प से लें तो हम उसमें काफ़ी सारे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं डेजर्ट सॉइल में, बट वी नीड मच इरिगेशन फॉर दैट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया: एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉइल इरोजन कि व्हाट इज सॉइल इरोजन। सो प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू ऑल नो दैट। तो कल्टिवेशन ऑफ फूड एंड अदर क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन सॉइल फर्टिलिटी। जितनी सॉइल फर्टाइल होगी उतना ही अच्छा आपका क्रॉप ग्रो होता है, बट इट डिपेंड ऑन द सॉइल फर्टिलिटी कि हम कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। जो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल होता है दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। अभी हमने टॉप सॉइल के बारे में पढ़ा था इन सॉइल प्रोफाइल, जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है एंड इट इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है बिकॉज ऑफ इरोजन। फॉर दिस सम फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूडेड स्लोप ऑफ द लैंड, बहुत ज़्यादा बारिश, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल डिपेंड करता है उस पर, वेलोसिटी ऑफ विंड, स्पीड ऑफ द विंड, दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स। एंड कल्चरल फैक्टर्स में क्या आता है आपका? डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, ओवर ग्रेजिंग, adoption of unscientific farming methods. These are the cultural and physical factor because of which removal of topsoil is happening, and that is known as soil erosion. So we have to conserve this conservation of soil. So if the soil cover is removed, our planet would become as barren and lifeless as the moon. जितना हमारा सॉइल कवर अगर हटता जाएगा तो हमारा प्लांट भी कैसा हो जाएगा? बैरन, एकदम बंजर, एकदम सूखा सा हो जाएगा। कैसा? मून के जैसा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सॉइल को कंजर्व करें। सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल दोज मेजर्स विच कैन प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड फर्टिलिटी एग्जॉशन। द डिफरेंट मैथड्स अडॉप्टेड फॉर सॉइल कंजर्वेशन आर बेस्ड ऑन द लोकल इन्वायरमेंट। सम मैथड्स आर डिस्कस कि कैसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, कैसे हम उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम उसके टॉप लेयर को रिमूव ना होने दें। तो फर्स्ट वन इज़ एफॉरेस्टेशन। ऑल ऑफ यू नो दैट कि इट इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व द सॉइल if we plant number of trees. So rows of trees should be planted at short distance in the field to provide shelter belts. हमें कम डिस्टेंस पे जो ट्रीज़ हैं उनको रोज़ में लगाना चाहिए, जिससे जो स्पीड ऑफ विंड है वो उसको इजिली कंट्रोल कर सके. सो इट इज़ नोन एज शेल्टर बेल्ट मेथड in which plants are planted in a rows. The next is overgrazing. जो overgrazing जो animals होते हैं वो overgrazing करते हैं. So we have to check that
Fodder should be raised as a crop. Fodder means that food for the animals. एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं हमें उनको चेंज करना चाहिए और वी हैव टू यूज़ सम मेथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व आवर सॉइल. तो फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ क्रॉप्स. रोटेशन ऑफ क्रॉप्स क्या होता है? इन विच सेम पीस ऑफ लैंड वी हैव टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ईच ईयर एट डिफरेंट टाइम्स. So that is known as rotation of crops. Second is strip cropping. Strip cropping में क्या होता है? Cultivation of erosion including crops in rotation and alternation with erosion resisting crops. हमें alternate strips में alternate crops को grow करना होता है. That is known as strip cropping. Terrace and contour bunding, in which terrace steps can be cut like terrace farming, in which they have cut and it is practiced in hill slopes only. जिसमें वो स्टीप स्टेप्स में कट करते हैं उसको एंड मेक दैट प्लेस फिट फॉर द फार्मिंग. एंड जैसे सॉइल इरोजन जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ मेकिंग दैट स्टेप्स और दैट कंटूर. That contour plowing is the cultivation of land along the contours in order to check the flow of water which otherwise can wash away the soil. So they have make that contour जिससे जो पानी का जो flow होता है वो काफ़ी कम हो जाता है and it is not done in the method of soil erosion. जैसे soil erosion जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है. Cover crops. Cover crops are grown in order to cover the bare ground. Such crops are grown. सो बेयर ग्राउंड को, खाली पड़े ग्राउंड को, बेकार ग्राउंड को कवर करने के लिए कवर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. मेनली इनको हम कहाँ पे कवर करते हैं? वेयर द जेस्टेशन पीरियड ऑफ ट्री क्रॉप इज़ लॉन्ग, जहाँ पे ट्री क्रॉप्स का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है. नेक्स्ट इज फैलोइंग. फैलोइंग और अलाउइंग द लैंड टू रेस्ट दैट द नेचुरल फोर्सेस कैन रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी. इसमें हम लैंड को थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं जिससे नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो फिर से आ सकें और सॉइल फर्टिलिटी जो है फिर से वो रीगेन हो सके. कैन सी द पिक्चर ऑफ टेरेस एंड कंटूर बंडिंग. सी दैट हाउ दे हैव कट दैट स्टेप्स एंड दिस इज कंटूर प्लोइंग. दिस इज द इमेज ऑफ कवर क्रॉप्स. नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट. इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टिमुलेट बैक्टीरिया. दिस लीड्स टू हायर क्रॉप yielding. Next is rock dams. Rock dams is also help to check the speed of water flow. Thus it control the occurrence of flow. Rock dams mean that they have uses the rocks to make that dam to control the flow of water. Soil erosion and subsequently fertility loss is a serious problem in developing countries. Fertility of soil can be regained through intensive manuring, use of chemical fertilizers and crop rotation. By all these methods we can regain, हम फिर से soil को fertile बना सकते हैं. The measure for soil conservation should be planned on scientific lines and implemented with the active participation of farmers. हमें उनको properly use करना चाहिए, scientific lines का use करते हुए properly scientifically and उन farmers का भी active participation होना चाहिए उसमें, so that by these methods we can conserve the soil. Now here the next topic started, that is water resource. So the last topic of this chapter. Water is the basis of life. You all know. A presence of water distinguishes our earth from other planets. हमारी as you know कि हमारे planet को blue planet भी बोलते हैं. Why? Because lots of water is there. बहुत ज़्यादा पानी है हमारे planet पे. 71% total surface of area of the earth that is covered with water. 71% जो है वो कितना है? Water ही है. और मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ओशंस एंड सीज. और वो 71% में से जितना भी हमारा एरिया है उसमें से 97% जो पार्ट है वो उसमें क्या है? मेनली ओशियंस और सीज़ की फॉर्म में है. सो द वाटर इज़ सलाइन. और आपको पता है ओशियन और सीज़ का पानी कैसा होता है? सलाइन. विच इज़ नॉट फिट फॉर द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर्पज. जिसको हम ना तो अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, ना ही एग्रीकल्चर के लिए और ना ही इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि उसका पानी जो होता है वो सॉल्टी सा होता है, सलाइन होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. सो अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की जिसको हम यूज़ करते हैं तो वो कितना है हमारे पास? ओनली अबाउट 3% इज़ फ्रेश वाटर, जिसमें से 2/3 जो है वो किस फॉर्म में है? ग्लेशियर्स के फॉर्म में, आइस कैप्स के फॉर्म्स में. तो हमारे पास कितना पानी है? सिर्फ जो फ्रेश वाटर है जो अर्थ सरफेस पे अवेलेबल, दैट इज़
ओनली 1%. इट मीन्स इट इज़ वेरी प्रेशियस कि कितनी पॉपुलेशन है और सिर्फ 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है. सो दैट्स वाई वी हैव टू conserve that. We have to give them more importance to this water because it is very precious. It is the basis of our life. So fresh water is the most precious natural resource. It is available as groundwater and in rivers and lakes. Rainfall is important source of fresh water का. Rain water is continuously recycled. रेन वाटर को रिसाइकिल करा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. और जो क्वालिटी ऑफ वाटर होती है दैट इज फिक्स्ड ऑन अर्थ. दैट्स वाई ओनली. प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न टू ह्यूमन बींग्स एज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर डोमेस्टिक नीड्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जब भी हम घर में बात करते हैं पानी की तो हम अच्छा पानी चाहते हैं कि प्योर हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, बिकॉज इट इज़ अबाउट द ह्यूमन बींग्स दे आर यूजिंग दैट. And for economic activities also, distribution of fresh water resource is highly uneven on the surface of the earth. जो फ्रेश वाटर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी अर्थ पे वो डिफरेंट है. कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है. हम ये नहीं कह सकते कि सब जगह बराबर फ्रेश वाटर अवेलेबल है. द वेरिएशन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज़ नॉट ओनली फ्रॉम सीजन टू सीजन बट ऑल्सो फ्रॉम रीजन टू रीजन. सीजन टू सीजन तो चेंज होता ही है, बट रीजन टू रीजन भी फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है. वाटर स्कैरेसिटी हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड. पानी की जो कमी है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है हमारे वर्ल्ड में कि जो फ्रेश वाटर है वो कम होता जा रहा है. ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं अफ्रीका की, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूएस एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, दे फेस अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज. एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो डिमांड फॉर फ्रेश वाटर हैज़ इंक्रीज्ड. क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ रही है. सो नाउ वी नीड मोर वाटर टू प्रोड्यूस मोर फूड एंड कैश क्रॉप, जिससे हम अपने घर की ज़रूरत डोमेस्टिक नीड्स को और उससे कुछ इनकम भी कर सकें, रेज कर सकें फॉर टू रेज आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वाटर शॉर्टेज इज ऑल्सो कॉज्ड बाय मिस यूज़, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. उसका ज़्यादा यूज़ करना, उसका मिस यूज़ करना, पानी का गंदा हो जाना वाटर रिसोर्सेज का, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ वाटर शॉर्टेज. इकोनॉमिक फैक्टर्स like the cost of supplying water to the dry regions also lead to acute shortage of fresh water. जहाँ पे dry regions हैं, जहाँ पे supply of water है, so that the cost, ये जो है सबसे मेन फैक्टर है कि पानी की कमी क्यों हो रही है. एशिया और अफ्रीका के कुछ एरियाज़ में वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस. उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए अपने घरों में फॉर द पर्पस ऑफ देयर डोमेस्टिक नीड्स. Detailed information about the abundance and shortage of water resources should be made available for its planned utilization. अगर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके शॉर्टेज ऑफ की वाटर का शॉर्टेज जो हो रहा है और कितना पानी है, कितना अवेलेबल कराना है, तो हमें उसके लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहिए. एक प्लान यूटिलाइजेशन की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं. नाउ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर इन आवर कंट्री इज़ टू इरीगेट द फार्म लैंड्स. सबसे मेनली क्या है कि हमें फार्म लैंड्स को इरीगेट करना होता है. इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है मॉनसून के टाइम पे, बट हर जगह सेम नहीं होती है. जैसे राजस्थान में कम बारिश होती है, किसी जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे थोड़ी होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है. सो इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल. इसलिए कहीं कहीं तो बाढ़ आ जाती है एंड सम प्लेसेस सफ़र द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट. कहीं पे कहीं सूखा भी पड़ता है और कहीं जगह बाढ़ भी आ जाती है. सो इट इज़ डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द वाटर सरप्लस रीजन. जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, वाटर सरप्लस है, हमें उसको उस जगह पे शिफ्ट करना होगा, डाइवर्ट करना होगा जहाँ पे पानी की कमी है. मीन जो वाटर डेफिसिट एरियाज़ हैं वहाँ उनको शिफ्ट करना होगा. मोस्ट ऑफ आर रिवर्स पास थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेट्स. बहुत सारी रिवर्स हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स में से पास होती हैं. नो स्टेट कैन सिंगली हैंडल दिस प्रॉब्लम ऑफ वाटर मैनेजमेंट. कोई ऐसा सिंगल स्टेट नहीं है जिसको फेस कर रहा है. देयर आर मैनी स्टेट्स. सो टू प्रोड्यूस मोर फूड, ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी बढ़ती पॉपुलेशंस हैं, सो वी नीड एडुकेट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर. दिस कैन बी डन थ्रू इरीगेशन ओनली. द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर canals, wells, tube wells and tanks. So water resources are an important part. So we have to conserve these water resources also. So in view of the present shortage of fresh water in many parts of the world, it has become necessary for us to conserve water and improve its quality.
This can be done by adopting the different measures, and these are: water is polluted by industries which discharge their waste products such as nitrate, metals and pesticides into water. This can be controlled by treating the impurities before releasing them into water bodies. मोस्टली जो पानी है वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से पॉल्यूट हो रहा है बिकॉज में वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं, बट हमको उसको वाटर बॉडीज़ में पहुंचने से पहले हम इसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना है जिससे हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटा सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये भी इम्पॉर्टेंट मेथड है कि हमें कैसे सेव करना है। रेनी सीजन में हम वाटर कलेक्ट कर लेते हैं एंड स्टोर्ड फॉर यूज़ ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स। इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स लाइक इन द रीजन्स ऑफ राजस्थान। जितने भी बहुत ज़्यादा जहाँ पानी की कमी है, सूखे से रीजन्स हैं या सेमी एरिड एरियाज़ है, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। स्प्रिंकलर्स, इट कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली यूज टू इरीगेट द फील्ड्स यूजिंग लेस क्वान्टिटी ऑफ वाटर। स्प्रिंकलर्स का यूज़ करते हैं जिससे एक टाइम पर चारों तरफ पानी लग जाता है इजीली, और उससे पानी का जो यूज़ है वो कम भी होता है। हमें ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए जिससे जो रिड्यूस होगा सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज पॉसिबल थ्रू प्लांट यूटिलाइजेशन एंड प्रोटेक्टिंग द अवेलेबल वाटर सोर्सेज फ्रॉम pollution. So conservation of water is very very important. It is only happen if we do the proper utilization and protect these water resources from pollution. So now here the chapter is finished. So try out the questions given at the back of the chapter. So take care, stay at home. Thank you.